Now students, the second part, the third video, the second part of exercise number 10.2, but the third video for the topic circle. So let's move on to question number 9. X, y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting x, y at A and x dash y dash at B. Prove that AOB is equals to 90 degree. Student, this question may be asked like this also. If you are writing the statement, then please write the statement. Prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents subtends right angle at the center. What is the statement? The intercept of a tangent between two parallel tangents subtends right angle at the center. Intercept of a tangent between two parallel tangents subtends right angle at the center. देखिए कैसे intercept of a tangent between two parallel tangents. अब ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये कैसे हैं? अबे अच्छे से समझा? हाँ ऐसे ठीक है, फिर भी ठीक हो गया थोड़ा सा, है ना? द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ये एक और टेंजेंट है। ये मान लो बुक के हिसाब से x y x dash y dash a b c. So we have to prove that the intercept of a tangent, यह है intercept, है ना? ये क्या है? Intercept of a tangent between two parallel tangent है। दो parallel tangent के बीच का जो intercept है वो subtends right angle at the center। हमें प्रूफ करना है ये जो एंगल AOB है ये कितने का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए मैं ये दो एंगल्स को x मान ले रहा हूं, ये दो एंगल्स को y मान ले रहा हूं। अब आप पूछोगे क्यों? बिकॉज the line segment joining the center to the external point bisect the angle made by the tangent at that point। क्या ये दो लाइन उस प्रकार से नहीं है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, वहां से एक टेंजेंट डाला गया है उसका नाम है AP और दूसरा टेंजेंट डाला गया उसका नाम है AC। तो क्या AO उस एंगल को PAC को बाइसेक्ट नहीं करेगी? यस, ऑफ कोर्स AO विल बाइसेक्ट एंगल PAC because the line segment joining the center to the external point bisect the angle made by the tangent at that point। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी ये जो लाइन है वो भी इसने उस एंगल को बाइसेक्ट किया है जो टेंजेंट BC और BQ ने बनाया है एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो एंगल PAO is equals to CAO is equals to X and QBO is equals to CBO is equals to Y। Reason? Theorem 10.2, the tangent, the line segment joining the center to the external point, the line segment joining the center to the external point bisect the angle made by the tangent at that point। टेंजेंट के द्वारा उस एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाए हुए एंगल को बाइसेक्ट करती है ये लाइन सेगमेंट, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। ऑल्सो एंगल PAB प्लस QBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। काय को? कोइंटीरियर एंगल्स, है ना? कोइंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होता है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दो एंगल्स जो हमारे पास में है, ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का 180 डिग्री होगा। मतलब 2x plus 2y is equals to 180 डिग्री, मतलब x plus y is equals to 90 डिग्री। So we are very near to the proof। Now we got x plus y 90 degree। Now I'm considering triangle AOB। In triangle AOB, x plus AOB plus y is equals to 180 degree by the property called angle sum property of triangle। x plus y is 90 degree, so automatically the value of AOB is coming to be 90 degree and that what we have to prove in triangle AOB। देखिए ध्यान से ये तीन एंगल्स हैं यहाँ पर, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, जिनमें से एक x है दूसरा y है। तो x plus y पहले ही बता दिया है कि वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए x plus y की जगह क्या लिख दिया 90 डिग्री
हमने प्रूव कर दिया एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. Very important question from examination point of view, can be asked like by changing the statement, prove that the intercept of a tangent between two parallel tangent subtends right angle at the center. ऐसा भी पूछा जा सकता है. तो स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा अपनी किताब में वहीं पर जहां पर ये सवाल लिखा हुआ है, क्योंकि जब इस सवाल को आप देखोगे हर बार वो स्टेटमेंट भी अपने आप ही पढ़ लोगे. तो अगर कभी वो स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप एटलीस्ट ये नहीं सोचोगे कि ये सवाल हमने तो किया नहीं है, बल्कि आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस सवाल को हमने इस प्रकार से एनसीईआरटी में किया था. तो ये कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो कभी कभी एग्जाम में हमें परेशान कर सकती हैं, तो हमें जब बताया जाए तो उसे जरूर नोट कर लेना चाहिए. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ये दो प्रकार से सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, दो अलग अलग प्रकार से पूछा गया था. ये मैं बता देता हूं आपको क्या पूछा गया था. इसमें क्या पूछा गया पहले वो बता देता हूं आपको. इसमें कहा गया है कि आप प्रूफ करिए कि जो सेंटर पर एंगल है और जो एक्सटर्नल एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा, है ना. ये पूछा गया है. तो होगा वो तो, क्योंकि ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है. OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, OQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों है ऐसा? ऐसा इसीलिए है, थ्योरम नंबर 10.1 कहता है कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसीलिए यह है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं इनर क्वाड्रिलेटरल APOQ, तो यहाँ पर एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सो एंगल A plus angle Q, A plus angle O becomes 180 degree. That's what you have to prove, that their sum is 180 degree, or we are proving that they are supplementary. So किसी भी एंगल को सप्लीमेंट्री बताने के लिए उनका सम हमें 180 डिग्री बताना पड़ता है, कि अगर उनका सम 180 डिग्री हो रहा है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री है. अगर आपको लगे तो इस O की जगह पर आप POQ भी लिख सकते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा. कहीं ऐसा ना हो आप O को 0 समझ बैठो, तो O नहीं है, 0 नहीं है, वो एंगल POQ है. ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस हमने प्रूव किया था अभी. क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, if a quadrilateral is circumscribing a circle, then the sum of its opposite sides are equal. वो हम प्रूव कर चुके थे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो उसके अपोजिट साइड का सम बराबर होता है. ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया था पिछले वीडियो में, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक सवाल और प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर किसी सर्कल को पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है तो पैरेललोग्राम एक क्या होगा? दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. नाउ सी, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखें कि AB जो है वो CD के बराबर होता है ना. तो AB अगर CD के बराबर है तो AB काय के बराबर है? AB AP प्लस BB के बराबर है. और या ऐसा कर लो, पहले अपन ने जो प्रूफ करा था उसी को ले लो कि AB प्लस CD बराबर क्या लिखो? AB को लिखा AP प्लस PB और CD को लिखा CR प्लस DR. और AP काय के बराबर है? AP AS के बराबर है, PB काय के बराबर है? BQ के बराबर है, CR काय के बराबर है? CQ के बराबर है, और DR काय के बराबर है? SD के बराबर है. तो ये AS को अपन ने ले लिया किसके साथ में? SD के साथ में. और PQ को काय के ले लिया साथ में? CQ के साथ में. तो AS प्लस SD कितना हो गया? AD. बिल्कुल वही सवाल फिर से कर रहा हूं मैं जो वहां पर किया था क्वेश्चन नंबर 8. ये हो गया BC. सेम क्वेश्चन किया है. अब मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी की. प्रॉपर्टी किसकी? पैरेललोग्राम की, कि AB तो CD के बराबर है ना. तो देयरफॉर AB प्लस AB इज इक्वल्स टू, अच्छा BC काय के बराबर है?
AD के बराबर है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ AB प्लस CD क्या प्रूफ कर दिया अपन ने? हमने प्रूफ कर दिया है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, है ना? ये प्रूफ कर चुके हैं अपन। AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC आ चुका है। अब AB और CD बराबर है तो हमने AB प्लस CD क्या लिख दिया? AB प्लस AB। AD और BC बराबर है तो हमने AD प्लस AD लिख दिया। क्यों? क्योंकि AD प्लस BC जो है उसमें BC AD के बराबर है, तो BC अगर AD के बराबर है तो BC की जगह भी हमने क्या लिख दिया? AD। तो क्या आ गया? 2AB बराबर 2AD। जब 2AB बराबर 2AD आ गया तो AB बराबर क्या आ गया? AD आ गया। तो AB बराबर AD आ गया, तो therefore ABCD इज अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए, किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है? वो रोम्बस बन जाता है। तो सबसे पहले इतना तो आप क्वेश्चन नंबर 8 वैसे का वैसे ही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की प्रॉपर्टी आपके पास प्रूफ हो जाएगी कि AB प्लस CD अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है। AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। और फिर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाइएगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं, AB बराबर CD और BC बराबर AD। वो लगा करके आप कह देना कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं बल्कि एक रोम्बस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी है और दो अलग अलग कंसेप्ट को यूज करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द हेरल्स फार्मूला, and before that you are studying that area of triangle is half base into altitude. So both the formulas we are using here to get the solution of this particular question, and the question is, there is a triangle circumscribing a circle of radius 4 cm such that the segments BD and CD, they are divided by a point D of length 8 cm and 6 cm. Find the side AB and AC. हमें साइड AB और AC पता करनी है, AB और AC की लंबाई पता करनी है। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है इतना पहले बना लेते हैं, फिर हम then we will move on to the solution part। यहाँ पर आपको BC जो है D है, यहाँ पर A है, यहाँ पर आप यहाँ पर ABCDE ले लो, यहाँ पर F ले लो, ले सकते हैं। अगर ये X होगा तो ये भी X होगा, अगर ये Y होगा लेकिन ये Y नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर कितना है? BD को अपन को दिया हुआ है, BD 8 है और CD 6, BD 8 है और CD 6 है। तो 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट में लिख देता हूँ कि BD is equals to BE is equals to 8 cm and CD is equals to CF is equals to 6 cm। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम नंबर 10.2। और साथ में ये भी लिख दो AE और AF जो है वो दोनों x सेंटीमीटर है। तो सारे के सारे कंसेप्ट वही हो गया, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, अब therefore लेंथ AB कितनी हो गई? x plus 8 हो गई। AC कितनी हो गई? x plus 6 हो गई। और BC आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, तो तीनों लेंथ आपको मालूम चल गई। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों लेंथ आपको मालूम है तो आप सेमी पेरीमीटर निकालते हो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2। पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर का आधा क्या हो गया? सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2। तो S की वैल्यू आ गई x plus 14। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका? ABC यूजिंग हेरल्स फॉर्मूला, S into S minus A, पहली वाली
और साथ में क्या आएगा s माइनस सी। तो ये इस तरह से हमारे पास ये आ गया। इसको लिखा हमने x प्लस 14, यहाँ से x कट जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 6 कट जाएगा, 8 बचेगा और साथ में x बचेगा। ये हो गया आपका 48x इंटू एक्स प्लस 40। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें, एक पॉइंट सेंटर जो आपका है उसे ले लेते हैं, O सेंटर है, और ये लाइन जो है रेडियस भी होगी और परपेंडिकुलर भी बन जाएगी, क्योंकि रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, हमने इस ट्रायंगल ABC को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है पहला AOB प्लस BOC प्लस AOC, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से ट्रायंगल को, ABC को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो देखो AOB का एरिया बेस कितना है, x प्लस 8 है, हाफ x प्लस 8 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 4 है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। उसी प्रकार से BOC में BC कितना है 14 है, एल्टीट्यूड 4 है। उसी प्रकार से AOC में AC कितना है, x प्लस 6 है और एल्टीट्यूड कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा, ये सब 4 जो है 2 काट देगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 8 हो गया, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 6 आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल आपका 2x प्लस, है ना, 14 14 28 28, या आप कह दो इसको 4 इंटू एक्स प्लस 40। तो ये दोनों एरिया अपने आ गए यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दो तरह से निकाले अपन ने, एक तरह से हेरल्स फॉर्मूला की मदद से निकाल लिया, और दूसरा हमने जो बेसिक हमारा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, उसको उसी ट्रायंगल में 3 जगह लगा करके, क्योंकि उस ट्रायंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और जब हमने उस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हमने उसको 3 जगह लगा दिया। AOB में लगा दिया उसी फॉर्मूले को, उसी फॉर्मूले को BOC में लगा दिया, और उसी फॉर्मूले को फिर हमने AOC में लगा दिया। तो हमारा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया ABC, अब आया 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 40। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम इक्वेट कर दें, 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 40। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, what you will be getting, 16 3 are 48, x plus 14 एक कट जाएगा, तो कितना आया, 3x is equals to x plus 14, so x is equals to 7, so the value of AB will be 8 plus 7, that is 15 centimeter, and the value of AC will be 6 plus 7 is equals to 13 centimeter. So in this way you will be getting the side, the length of the side of the triangle for this triangle, that is the length of the side of AB and AC, the length of the side of AB and AC as 15 and 13 centimeter. So in this way we complete this question, important question from an examination point of view. Now we are discussing, we are moving on to the next question, and the question is again a good question. A quadrilateral is circumscribing a circle, then the angles subtended by the sides of the quadrilateral, the opposite angles subtended by the sides of the quadrilateral are supplementary, that we have to prove here. कि अगर किसी quadrilateral ने सर्कल को circumscribe किया है, if a quadrilateral is circumscribing the circle, then the sum of the opposite angles at the center, and the sum of the opposite angles at the center is 180 degree, means the angles are supplementary. The angles subtended by the sides at the center is supplementary, that we have to prove. So let's see the last question of the exercise number 13. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribed circle subtends supplementary angle at the center. Opposite sides of a quadrilateral,
circumscribing a circle, quadrilateral की opposite side, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो बन जाता है इस प्रकार से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, और ये सेंटर का एक एंगल, ये सेंटर का दूसरा एंगल। हमें प्रूफ करना है कि इनका सम 180 डिग्री होता है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा कि ये जो एंगल है ये बराबर होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, अगर ये z होगा तो ये भी z होगा, अगर हम इसको w लेते हैं तो ये भी w होगा। मतलब हमने क्या करा, OAB इज इक्वल्स टू OAD। हमने क्या करा, OBA इज इक्वल्स टू OBC। हमने क्या करा, OCB इज इक्वल्स टू OCD एंड ODC इज इक्वल्स टू ODA। ये सब बराबर। The line segment joining the center to the external point bisect the angle made by the tangent at that point. Theorem number 10.2. The line segment joining the center to the external point bisect the angle made by the tangent at that point. OAB is equals to OAD, OBC is equals to OBA, OCD is equals to OCB, and ODA is equals to ODC. तो अब हम कह सकते हैं, as we know that a plus b plus c plus d कितना है, 360 है। तो a मतलब 2x हो गया, b मतलब 2y हो गया, c मतलब 2z हो गया, d मतलब 2w हो गया, है ना, इज इक्वल्स टू 360। सबको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, सारे टर्म्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिलेगा x plus y plus z plus w। अब अगर अपन इसको आगे देखें तो x plus y की बात करते हैं इन ट्राइंगल AOB। x plus y plus AOB कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कैसे, x plus y plus AOB बराबर 180। इन ट्राइंगल DOC W plus Z plus DOC is equals to 180, the same property। Therefore, adding x plus y plus w plus z plus AOB plus DOC is equals to 180 plus 180। दोनों इक्वेशंस को अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे हम, तो हमें जो x plus y plus z इसकी वैल्यू हम 180 निकाल चुके हैं, इसकी जगह 180 लिखेंगे। और अब हमारा जो 180 है ये हमारी राइट हैंड साइड के 180 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमें मिल जाएगा AOB प्लस DOC इज इक्वल्स टू 180। ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। अगर कोई कहेगा ये वाला भी बताओ, इसका भी सम 180 होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सिंपली आप क्या कह दो कि एज वी नो दैट, सबको पता है AWT, AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA इज इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, है ना, कैप के नाम से जानी जाती है वो सेंटर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि एक पॉइंट के अबाउट जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपने AOB प्लस DOC तो बता दिया 180 डिग्री होता है, तो BOC प्लस DOA की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली यहां से BOC प्लस DOA जो है वो भी 180 डिग्री आ जाएगी। तो आपका इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट जो है ये भी आपको प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि BOC प्लस DOA को 180 डिग्री भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सर्कल चैप्टर कंप्लीट, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है, इतना सा सफिशिएंट नहीं होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें जरूर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आई विल बी सेंडिंग यू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर अलॉन्ग विद दिस। तो एक PDF फाइल भेज दूंगा मैं आपके ग्रुप पर, इसको जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्कल। इन द नेक्स्ट
chapter, the next chapter which we are taking is the applications of trigonometry, the topic known as heights and distance. So thank you students, take care and be healthy at your homes. Thank you.